যোগ শুধু শরীর চর্চা নয়, এটি শরীর, মন এবং আত্মার মধ্যে ভারসাম্য তৈরির একটি প্রাচীন ভারতীয় সাধনা। বর্তমানে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ সুস্থ জীবনযাপন, মানসিক শান্তি এবং ফিটনেসের জন্য যোগাভ্যাসকে বেছে নিচ্ছেন। এই যোগের গুরুত্বকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরতেই প্রতি বছর 21শে জুন পালিত হয় আন্তর্জাতিক যোগ ডে, অর্থাৎ যোগা দিবস। উত্তর পূর্বের সঙ্গে গোটা দেশে রবিবার উদযাপিত যোগা দিবস। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে বিজেপি শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতৃত্ব অংশ নিয়েছেন অনুষ্ঠানে। এদিকে 2026 সালে পালিত হচ্ছে এই বিশেষ দিবসের 12তম বর্ষ। ভারতে এবারের প্রধান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতার ঐতিহাসিক রেড রোডে, যেখানে উপস্থিত রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ আন্তর্জাতিক যোগ দিবস এবং সেই উপলক্ষে কলকাতার রেড রোডের ছবি দেখানো হচ্ছে। শুধুমাত্র রেড রোডে নয়, দেশব্যাপী পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। ঠিক কিছু মুহূর্ত আগে আমরা সেই ছবি আপনাদের সামনে সরাসরি তুলে ধরেছিলাম, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বক্তব্য রেখেছেন যে যোগ চর্চা সকলকে করা উচিত। যোগাভ্যাসের মাধ্যমে মানুষের যেই একেবারে শরীরটা ঠিক থাকে, শরীর চর্চা একেবারে কিন্তু সঠিক থাকে এবং মানুষ বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা বাড়ে, মানুষ সুষম জীবন যাপন করতে পারবেন, এমনটাই কিন্তু বক্তব্য রেখেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তিনিও কিন্তু বলেছেন যে বাংলা থেকে যোগ কোথাও না কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল বিগত বছরগুলিতে এবং প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে যোগ আবারও একেবারে বাংলার বুকে ফিরে এসেছে। এতে কার্যত তিনি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। তিনি ধন্যবাদ জানান যারা এসেছেন সেখানে, অর্থাৎ কয়েক লক্ষ মানুষ, কয়েক লক্ষ জনসমাগম শেখানো হয়েছে রেড রোডে। সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং রেড রোডে খুব সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খলভাবে কার্যত আজ যোগ দিবস উদযাপিত হলো। সকাল সকাল একেবারে কিন্তু আমরা দেখেছি যে 6:10 থেকে ঠিক কিছু সময় পর কার্যত প্রধানমন্ত্রী রেড রোডে পৌঁছে গিয়েছিলেন এবং একেবারে যথাসময় অর্থাৎ 6:30 যোগের যে অনুষ্ঠান তা কিন্তু শুরু হয়ে যায় এবং যোগ চর্চা হয়। পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং নিজে পায়ে হেঁটে কিন্তু যারা যোগ চর্চা করছিলেন তাদেরকে দেখেন এবং কেউ যদি ভুল করে থাকেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিন্তু তাদের শুধরেও দিয়েছেন। এই ছবিও কার্যত আজ উঠে এসেছে রেড রোড থেকে। ঠিক কি বলেছিলেন রেড রোডের মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শুনুন। 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में
यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती पर जन्मे गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर का मानना था कि मनुष्य की पहचान अलग अलग रहने में नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। आई थिंक फिट रहने के लिए कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। जो भी आप करते हो उसे डेली बेसिस पे करना बहुत जरूरी है। कभी कभार लगता है कि यार योगा बहुत बोरिंग है, इट्स अबाउट ब्रीदिंग, इट्स अबाउट स्ट्रेचिंग, इट्स अबाउट लाइफ, लॉन्गर लाइफ, फैट लॉस, कुछ भी आप चाहते हो तो इट इज ओनली ब्रीदिंग दैट कैन हेल्प यू। प्राणायाम्स आपको हेल्प करता है, आपके आसन आपको हेल्प करते हैं। तो आई थिंक ये करना बहुत ही जरूरी है। योगा डे एस्टैब्लिश होने से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात जरूर कह दी दुनिया को कि ये हमारा था, हमारा है और हमेशा हमारा रहेगा। हम यहाँ से योगा को हर चीज गोरे हमें हर चीज यहाँ से लेकर जाते हैं, उसको सिर्फ अच्छी पैकिंग करके दोबारा वापस लेके आते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमारे ही है, तो अपनाइए। और सिर्फ एज वाइज योगा नहीं होता, बच्चों के लिए भी योगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो पेशेंस, वो ब्रीदिंग, वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन को कंट्रोल करने के लिए योगा, उसके आसन और प्राणायाम से बड़ा कुछ नहीं है। शेट्टिर বক্তব্য আমরা শুনে নিলাম। বলিউড অভিনেতা, বলিউড তারকা সুনীল শেট্টি বক্তব্য রাখলেন যোগ দিবস নিয়ে, এবং একেবারে কিন্তু একের পর এক তারকা বৃন্দরা তারা কিন্তু বক্তব্য রেখেছেন। শিল্পা শেট্টি ঠিকই বলেছেন, তিনি একেবারে কিন্তু নিয়মিত যোগ চর্চা করে থাকেন। আমরা প্রতিনিয়ত তার বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে দেখে থাকি। এই দিবসটি তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক কি বলেছেন তিনি, শুনুন। ये कोई सीक्रेट तो है नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो योग को अपनाएं, सिर्फ विज्ञान के तौर पे नहीं और व्यायाम के तौर पे नहीं, बट एक लाइफस्टाइल के तौर पे। तो आई थिंक आई हैव मेड इट दैट, मेरी जीवन शैली बन गई है। एंड आई जस्ट फील के जो बेनिफिट्स है योग के, वो आपको खुद एहसास होगा जब आप करेंगे। तो मैं कुछ भी कहूँ, और अगर मुझे जितना भी श्रेय मिलता है, मैं जैसे हूँ और लोगों को लगता है कि अरे वाह क्या मेंटेन किया है मैंने, और मोर देन फिजिकल फिटनेस मैं ज़्यादा अहमियत देती हूँ मेंटल फिटनेस पे। तो योग जो है
just keeps you so balanced and so focused. और एक you'll feel very positive as well when you take up yoga. मतलब क्या राजेश कौन सा रहना मेरा मानना है कि ऑफ कोर्स कि फिटनेस स्टार्ट्स विथ योर सेल्फ। अगर आप फिटनेस में बिलीव करते हैं तो मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है, एक किस्म का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और योगा जो है वो चीज़ आपको सिखाती है। यू गेट अप इन द मॉर्निंग। हम आज की युवा पीढ़ी इतनी भागम दौड़ी में है, हमें अचीव करना है इतना कुछ अपनी लाइफ में, बहुत जल्दी हासिल करना है। बट योगा कहीं ना कहीं हमें वो बैलेंस करा देती है, वो चीज़ें ऑलमोस्ट सिखा देती है कि इन सब चीज़ों में भी आप अपने आप पर थोड़ा कंसंट्रेट करें। एंग्जाइटी आज के हम बहुत सारी युवा पीढ़ी में हम ये शब्द तो बड़ा कॉमन हो गया है कि एंग्शियस हैं, वी आर फीलिंग एंग्जाइटी, हमें पैनिक अटैक हो गया, हमें ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि आपका दिमाग इतना तेज़ जा रहा है, आप बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ ज़्यादा हासिल करना चाह रहे हैं, बट खुद सांस लेना भूल गए। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उनसे बहुत प्रभावित भी हुआ हूँ कि आज भी जिस किस्म की एनर्जी के साथ वो हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आई थिंक उनसे बहुत